Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Marinisa from Qazi Medical College, Bahawalpur. Today here are some thorax MCQs which I am going to discuss. So the first MCQ is cervical rib. Alpha option traction on the upper trunk of the brachial plexus. Beta option abnormal sensations along the radial border of the forearm. Charlie attached to the C7 vertebra. Delta vesting of the small muscles of hand supplied by segment T2. इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। अल्फा ऑप्शन में जो मिस्टेक है वो है अपर ट्रंक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ट्रैक्शन ऑफ द लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस होती है। बीटा ऑप्शन में सेंसेशंस अलोंग द अल्नर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड डेल्टा ऑप्शन में T1 सेगमेंट वाले हैंड मसल्स अफेक्ट होते हैं। सो इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A young man had an injury to the neck with some sharp object 3 years ago. Now he notices a bulging swelling above the clavicle on sneezing and coughing. This swelling is probably due to the suprapleural membrane, because actually the suprapleural membrane act as a rigid barrier so as to prevent the changes in the intrathoracic pressure drawing upon the contents of the neck. So इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ is Sibshin fascia is regarded as flattened tendon of Scalenus minimus का टेंडन होता है ये, अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट इज which one of the following structure passes through the superior aperture of the thorax? इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, thoracic duct। नेक्स्ट इज the weakest point of the rib is अल्फा ऑप्शन, angle of the rib। Next MCQ is if the aortic opening of the diaphragm is constricted, which of the following structure will be complexed along the aorta? The structure passing from the aortic opening are the aorta, thoracic duct and azygous vein. So चार्ली ऑप्शन में thoracic duct and azygous vein दिया हुआ है, तो ये वाले structures complex होंगे। Next is regarding diaphragm which is appropriate. इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि डायफ्राम को फ्रेनिक और इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करते हैं, तो इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायफ्राम इज सप्लाइड बाय C3, C4 एंड C5, अल्फा ऑप्शन। द थ्री लार्ज ओपनिंग्स इन द डायफ्राम आर एट द लेवल ऑफ फॉलोइंग thoracic वर्टिब्रा, डेल्टा ऑप्शन T8, T10 एंड T12। T8 पे वेना केवल ओपनिंग, T10 पे एसोफेजियल ओपनिंग एंड T12 पे एओर्टिक ओपनिंग। Next MCQ is musculophrenic artery perforates the diaphragm at the level of Charlie option, ninth costal cartilage. Next MCQ is after entering the superior mediastinum, structure that is right side of the trachea. Right side पे trachea के प्लूरा होता है, right lung होता है, vagus nerve होती है और azygous vein होती है। So बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। Superficial cardiac plexus in the superior mediastinum is formed by branches of the left vagus nerve. So beta option correct है इसका। Next MCQ is which of the following structure is not present in the superior mediastinum? Arch of aorta, superior vena cava, trachea, thoracic duct और बहुत सारे structures present होते हैं, लेकिन इनमें से जो beta option लिखा हुआ है subplanchnic nerve वो inferior mediastinum का structure है, so beta option correct। Diaphragm is directly not attached to Charlie option, xiphisternum। In the posterior mediastinum, posteriorly we have lower border of the 8th thoracic vertebra, so Charlie option correct। Regarding the anterior body wall, इसका delta option correct है। The intercostal nerve lies inferior to the intercostal artery. First option में लिखा हुआ है the umbilicus receives cutaneous innervation from the T8, instead it receives from T10. The neurovascular bundle lies between the external and the intercostal muscles, बल्कि इनकी जो न्यूरोवास्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं ना वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं जो उनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं। चार्ली ऑप्शन इज निपर रिसीव द क्यूटेनियस इनर्वेशन फ्रॉम T4, इंस्टेड ये T6 लिखा हुआ है, T4 से रिसीव करता है और प्यूबिक स्किन की जो इनर्वेशन होती है वो T12 से होती है, तो इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट होगा। द एसोफेजियल ओपनिंग इन द डायफ्राम ट्रांसमिट्स ऑल एक्सेप्ट, इसका डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। एसोफेजियल ओपनिंग में एसोफेगस होता है, एपिगेस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं और वेगस नर्व होती है, बोथ वेगल ट्रंक्स होते हैं, सो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है इसका। द वेना केवल ओपनिंग formina in the diaphragm lies at the level of T8. Regarding the descending part of the thoracic aorta, it is a component of the middle mediastinum.
अल्फा ऑप्शन है, इसमें मिडल मीडियस्टाइनम का कंपोनेंट नहीं होता बल्कि ये पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम का कंपोनेंट होता है. इट बिगन्स एट द लेवल ऑफ T3 वर्टिब्रा, T4 वर्टिब्रा के लेवल से स्टार्ट होता है. चार्ली ऑप्शन है, इट पासिस थ्रू द डायफ्राम बिहाइंड द लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, ये भी रॉन्ग है. देन डेल्टा ऑप्शन, इट बिगन्स एट द बिगिनिंग ऑफ द आर्च ऑफ एओर्टा, ये बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होता बल्कि कंटिन्यूएशन होती है आर्च ऑफ एओर्टा की. ईटा ऑप्शन इज करेक्ट, इट पासिस टू द एब्डोमेन एट द लेवल ऑफ T12. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्ट वाल्व हैज टू कैस्प. मिट्रल वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व जो होता है उसके दो कैस्प्स होते हैं. नेक्स्ट एमसीक्यू इज इन द लंग द ऑब्लिक फिशर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द राइट साइड. ऑब्लिक फिशर हमेशा दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होता है जो कि लंग्स को डिवाइड करता है पार्टीशंस में. बीटा इज फिशर क्रिएट्स अ रफ एंड सरफेस टू प्रमोट इजियर एक्सपेंशन, ये भी रॉन्ग है. चार्ली ऑप्शन इज द ऑब्लिकिटी ऑफ द फिशर इंश्योर्स बेटर एक्सपेंशन ऑफ द एपेक्स ऑफ द लंग, ये ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज ये एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स को फेवर करता है. डेल्टा इज द लिंगुला इज द सेपरेट लोब ऑफ द लेफ्ट साइड, ये भी रॉन्ग है क्योंकि लिंगुला एक सेपरेट लोब नहीं होता बल्कि ये एक एक्सपेंशन होती है लेफ्ट साइड से, लेफ्ट लंग की. नेक्स्ट एमसीक्यू इज द राइट फ्रेनिक नर्व. राइट फ्रेनिक नर्व जो है एक्चुअली ये डायफ्राम को सप्लाई करती है और क्रस्ट को सप्लाई करती है, मोटर सप्लाई देती है इनको, तो इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यू इज विद इन अ thoracic inlet. द डेल्टा ऑप्शन इज द वेन एंटरिंग द सुपीरियर मीडियस्टाइनम लाई बिहाइंड द आर्टरीज, इसका ईटा ऑप्शन करेक्ट है. दैट इज द ट्रैकिया टचेस द जुगुलर नोच ऑफ द मेनिब्रम. लेफ्ट डोमिनेंस मीन्स, लेफ्ट डोमिनेंस में एक्चुअली जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है उसकी जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है ना वो सप्लाई करती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांचेस को, तो इसका चार्ली ऑप्शन करेक्ट बनेगा. इन द चेस्ट वॉल द इंटरकॉस्टल आर्टरी लाइज बिटवीन द इंटरकॉस्टल नर्व एंड वेन, VAN का रिलेशन होता है वेन, आर्टरी एंड नर्व, सो आर्टरी इन दोनों के दरमियान में लाई करती है वेन और नर्व के. द इसोफेजियल ओपनिंग is in the diaphragm is opposite at the T10 level. The most superficial structure in the thoracic inlet is superior vena cava. Next question is the diaphragm. इसका ईटा ऑप्शन करेक्ट है. aortic opening opposite at T12 vertebra. अल्फा ऑप्शन में T8 लिखा हुआ है, एसोफेजियल को वो T10 लेवल पे होती है. बीटा ऑप्शन में डायफ्राम की सप्लाई लिखी हुई है 5th 6th और 7, इंस्टेड ये 3, 4 और 5 से सप्लाई होती है इसकी. चार्ली ऑप्शन है हैज अ मेजर रोल इन एक्सपायरेशन. डायफ्राम का मेजर रोल इंस्पायरेशन में होता है, सो इसका ईटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा. इन द सुपीरियर मीडियस्टाइनम, चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है. द राइट फ्रेनिक डिसेंड्स इन कांटेक्ट विद द सुपीरियर वेना cava. नेक्स्ट इज द रिगार्डिंग द डायफ्राम, इसके बीटा ऑप्शन करेक्ट है. इट हैज सेंट्रल टेंडन विच इज फ्यूज इनसेपरेबली टू द विसरल पेरिकार्डियम, क्योंकि इसका क्रक्स फिक्स्ड नहीं होता और बाकी सारे ऑप्शंस भी रॉन्ग है. नेक्स्ट इज द डायफ्राम हैज एन एओर्टिक ओपनिंग विच ट्रांसमिट्स द राइट वेगस नर्व. बीटा ऑप्शन हैज एन इसोफेजियल ओपनिंग एट द लेवल ऑफ T8, इसोफेजियल ओपनिंग T10 लेवल पे होती है. चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है. इट इज पियर्स्ड बाय द लेफ्ट फ्रेनिक नर्व एट द लेफ्ट ब्रोन. नेक्स्ट इज द मेजर आर्टीरियल सप्लाई to the interventricular septum originates from posterior descending branches. Next is the vagus nerve. Vagus nerve is a mixed nerve and by its recurrent laryngeal branches ये supply करती है muscles of the larynx को, so चार्ली ऑप्शन करेक्ट है इसका. Best of luck. Thank you so much.